Hello everyone, welcome to Elite's Grid. So today we will discuss a question related to para completion which came in CAT 2022 in the first slot. So this is the question. So in these questions, you will be given a paragraph and there will be certain blanks which will be numbered like this. So you will be also given a sentence and you have to decide where this sentence will fit into this paragraph. All right. So these are the options and then you have to tell which option where, this sentence should come. Now, just like in parajumbles, remember that this paragraph also has to be coherent. So, agar one sentence is ending here, then, the next sentence should talk about the thing which is already being talked about in the first one. मतलब उससे कुछ लिंक होना चाहिए, फिर सेकंड और थर्ड के बीच में लिंक होना चाहिए, फिर थर्ड सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस के बीच में लिंक होना चाहिए. सब में कोई ना कोई लिंक होना चाहिए, कोई अब्रप्टली बीच में कुछ ऐसे नहीं आना चाहिए. So this particular thing is very important in this question also. कि अगर आपको डिसाइड करना है कि कहां पर ये वाला सेंटेंस फिट होगा, देन रिमेंबर कि वो फ्लो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो वो उसी ब्लैंक में आएगा जहां पर उससे पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस से वो कनेक्टेड है. इट इज मेकिंग सेंस. ऐसे कहीं भी वो बीच में अलग बात कर रहा है जो फर्स्ट और सेकंड बात नहीं कर रहे हैं, देन दैट वोंट बी द केस. ऑलराइट, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन. तो जहां पर भी आपको लगे कि ये अच्छा इस वाले सेंटेंस में, मतलब दिस इज अ ब्लैंक गिवन एंड देयर इज अ ब्लैंक हियर, देन देयर इज अनदर सेंटेंस, व्हेरेवर यू फील कि ये सेंटेंस में कुछ मिसिंग है, मोस्ट प्रॉब्ली वो जो सेंटेंस है वो वहीं पे आएगा जहां पे आपको फील होगा कि देयर इज समथिंग मिसिंग हियर. सडनली इस चीज के बाद वो वाली बात कर रहे हैं, तो जहां पर ऐसा फील नहीं होगा कि कुछ मिसिंग है, प्रॉपरली सेम बात चल रही है, अननेसेसरी वहां पर इंसर्ट मत करना. Now, second thing, take care of the conjunctions as well, like but and जो चीजें and like दो चीजों को जोड़ रही है, but if it is talking about something which is in contradiction, तो ध्यान रखना है कि opposite meanings को attach करना है. So conjunctions, pronouns, just like we have started in parajumbles, all such things will be helpful here as well. So let's begin this question. Never before, okay, this is the sentence that is given to us. Let's read the sentence first. Having made citizens more and less knowledgeable than their predecessors, the internet has proved to be both a blessing and a curse. So this is telling that, internet has both the benefits as well as disadvantages. And, it has given more knowledge as well. But, अब ये sentence कुछ hint हमें मिल सकती है कि ब्लेसिंग्स और कर्स दोनों की बात हो रही है, या तो पहले हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताए होंगे, फिर एंड में हम ऐसे बोल रहे होंगे कि वो ब्लेसिंग भी है कर्स भी है, या स्टार्टिंग में हम बोल रहे होंगे कि ब्लेसिंग एंड कर्स है और फिर हम उसके दोनों एस्पेक्ट्स बता रहे होंगे. सो we can just guess something related to it, but let's read the paragraph. Never before has a population, nearly all of whom has enjoyed at least a secondary school education, been exposed to so much information, whether in newspapers and magazines or through YouTube, Google and Facebook. So it is telling us कि पहले इतनी information को expose नहीं किया जाता था लोगों को जितनी अब उनके पास है. Now this is the first blank. Yet it is not clear that people today are more knowledgeable than their were literate predecessors. तो अब देखो फर्स्ट और सेकंड में हमें फ्लो दिख रहा है कि पहले बता रहे कि जो हमारे प्रीडिसेसर्स थे, पीपल बिफोर, नेवर बिफोर हैज अ पॉपुलेशन, दैट मींस आवर प्रीडिसेसर्स, उनको कभी भी इतना एक्सपोजर नहीं मिला. और फिर अब बता रहे हैं येट, फिर भी क्लियर नहीं है कि वो जो एक्सेसिव नॉलेज का जिनको एक्सपोजर मिला है, they have actually become more knowledgeable or not, we don't know that. So this particular thing is in flow. मतलब अगर मैं इस सेंटेंस में ये ऐसे इंसर्ट करूं कि इंटरनेट हैज बोथ, it has proved to be both a blessing and a curse, अननेसेसरी लग रहा है बीच में, क्योंकि वी आर नॉट रियली टॉकिंग अबाउट बेनिफिट या कर्स. अभी तक कुछ भी थोड़ा बेनिफिट दिख रहा है बट कर्स की तो बात ही नहीं हो रही है. सो दिस इज फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर जरूरत ही नहीं है. बीच में जो ब्लैंक है इनके, उसमें अननेसेसरी हमें बेनिफिट्स या डिसएडवांटेज को इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है. ये पहले बता रहा है कि जो प्रीडिसेसर्स थे उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं था पर अब हो गया है, बट स्टिल yet we can't say that they have become more knowledgeable or not. So there is a direct flow between these two sentences. So first में ये sentence कोई sense नहीं बनाएगा, it will look very abrupt. So option 1 is out. Contemporary advances in technology offered more serious and inquisitive students access to realms of knowledge previously unimaginable and unavailable.
Now this is telling that today, we have more advances, so those students are more inquisitive, they're more curious, they will have access to a lot of information, lot of knowledge which was not available earlier. तो ये भी जो पहले बात करते हैं उसी फ्लो में है कि अब ज्यादा एक्सपोजर है इंफॉर्मेशन का. देन सेकंड ब्लैंक आ गया, ठीक है. बट अब सेकंड के बाद बट है. सो मतलब बट से पहले हमें ऐसी कोई बात करनी पड़ेगी जो इस बट के बाद आ रही है उसकी ऑपोजिट हो, बिकॉज बट जॉइंस टू थिंग्स दैट आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर. So, but such readily available knowledge leads many more students away from serious study, the reading of actual text, and towards an inability to write effectively and grammatically. So, this is telling us the negative aspect of having so much exposure to knowledge. कि extra knowledge available है इसलिए वो खुद serious study करते ही नहीं है, कुछ भी read नहीं करते. Just like many of us, we try to watch certain videos, shortest video possible instead of reading the thing ourselves. तो ये एक negative aspect है. तो but is telling us some. but के बाद कौन सा एस्पेक्ट है? देखो, but दो चीजों को ज्वाइन करेगा. तो पहले अगर बाद में उसमें कुछ नेगेटिव आ रहा है तो पहले उसके बारे में कुछ पॉजिटिव होगा, तभी तो बट है. तो देखो, बट से पहले हम बता रहे हैं कि कंटेम्प्रेरी एडवांसेस इट हैज गिवन मोर एक्सेस टू इंक्विजिटिव स्टूडेंट्स. सो मतलब इट इज टेलिंग सम बेनिफिट, पॉजिटिव एस्पेक्ट. और फिर बता रहे कि एक्सेस मिल गया इस वजह से अब वो लोग पढ़ना ही छोड़ दिया उन लोगों ने. दे डोंट वांट टू रीड द टेक्स्ट. सो ये फ्लो में है. अब यहाँ पर बीच में हम बोले इंटरनेट हैज प्रूव्ड टू बी बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स, देन फ्लो अननेसेसरी डिस्टर्ब हो जाएगा. क्योंकि अब बट से पहले अगर हम लिख दे इंटरनेट हैज प्रूव टू बी बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स, और फिर हम बट लगाएंगे इस सेंटेंस के बाद, अगर हम बट यूज करेंगे तो सेंस नहीं बनेगी. बिकॉज बट कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन वी वांट टू कॉन्ट्रडिक्ट द थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी टोल्ड बिफोर. तो अगर इंटरनेट और ब्लेसिंग्स हमने बता दिया, इंटरनेट हैज अ ब्लेस हैज प्रूव टू बी बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स, फिर बट लगाएंगे, मतलब हम इस बात को गलत ठहरा रहे हैं. बट ऐसा तो नहीं है. तो ये बट किसके लिए? यही बात है जो पॉजिटिव बताया है उसी का नेगेटिव है. तो यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं आएगा. So this sentence will not come in option 2 also. Why? Because but से पहले वैसी चीज होनी चाहिए जो but के बाद है उसका ऑपोजिट हो. तो blessing and curse के बाद but नहीं आएगा, क्योंकि अदरवाइज हमें फिर उसके बारे में कुछ उल्टा बताना पड़ता, which is not the case here. So option 2 also gone. Now third. Okay, so अब हमने क्या पढ़ा कि सेकंड में कि it is giving it disadvantage of internet that people students are not really going for serious studies. Then third has come. Okay, after that it has let people choose sources that reinforce their opinions rather than encouraging them to question inherited beliefs. तो अब ये जो थर्ड के बाद भी हमें सेंटेंस मिला है, देखो वी वर गिवन. अच्छा, पहले अब एक बार इस पैसेज की समरी फिर से देख लेते हैं कि पहले क्या था कि पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया है कि पहले इतना एक्सेस नहीं था, नाउ वी हैव दिस एक्सेस. फिर हमारा था फर्स्ट ब्लैंक. हियर वी हैड दैट फर्स्ट ब्लैंक. तो फर्स्ट ब्लैंक हमें नहीं लगा सही, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके बाद जो हमें गिवन था कि टुडे येट इट इज नॉट क्लियर, जो इतना एक्सेस मिला है इससे सच में उनकी नॉलेज इंक्रीज हुई भी है या नहीं. तो ये यहाँ पर फ्लो में था, हमें फर्स्ट की जरूरत पड़ी नहीं. सो दिस ब्लैंक वाज आउट. फिर इसके बाद सेकंड ब्लैंक था. second blank again was about after this only कि उससे पहले हमने कुछ benefits के बारे में बात की थी, other benefits, some other benefits also of internet की access है. फिर second blank भी हमने देखा कि use नहीं हुआ. Why? Because क्योंकि उसके बाद जो but था, बट से पहले ऐसी चीज होनी चाहिए जो बट के बाद कॉन्ट्रडिक्ट करेगी. तो बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स, और फिर बट करके हम कुछ और बात कर रहे हैं, wasn't making any sense. तो इसलिए सेकंड भी चला गया. फिर अब है वी आर लेफ्ट विद नाउ थर्ड ब्लैंक. थर्ड ब्लैंक और फिर थर्ड ब्लैंक के बाद कौन सी बात हो रही है? अगेन सम नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेट. तो थर्ड मतलब सेकंड जो है सेंटेंस, मतलब थर्ड ब्लैंक से पहले अगर मेरा थर्ड ब्लैंक है तो उससे पहले भी हम नेगेटिव एस्पेक्ट इंटरनेट के बारे में बात कर रहे हैं, और थर्ड के बाद भी नेगेटिव एस्पेक्ट की ही बात कर रहे हैं, और फिर एंड में फोर्थ है. तो दो नेगेटिव एस्पेक्ट्स की ही बात हो रही है. उसके बीच में मैं कहूँ इंटरनेट हैज प्रूव टू बी बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स, दैट वोंट मेक सेंस. कि इससे अच्छा है कि पहले दोनों नेगेटिव बातें एक साथ हो जाए और फिर मैं एंड में बोल दूं कि इट्स बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स. बिकॉज पैरा के शुरू में हमने ब्लेसिंग वाला पार्ट कवर कर लिया, पैरा के एंड में हमने नेगेटिव एस्पेक्ट या कर्स वाला बात डिस्कस कर लिया, और एंड में हम कह सकते हैं इट इज बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स. अब ये दो नेगेटिव बातें दोनों नेगेटिव है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नेगेटिव दैट यू विल चूज सोर्सेज दैट रीइंफोर्स योर ओपिनियंस. अब आपका ओपिनियन बन चुका है कि ओके
ऐसा होता है ना इंटरनेट पे दैट दिस थिंग इज बैड फॉर अस। आप ऐसे गूगल पे सेंटेंस डाल दोगे तो वही चीजें खुल जाएंगी जिसमें उस चीज को बैड ही प्रूव किया होगा, तो आप अपना ओपिनियन ही रेनफोर्स कर रहे हो सकता है कि यू नो दैट थिंग कैन बी गुड ऑल्सो, बट इंटरनेट की वजह से यू आर रीइंफोर्सिंग योर दैट सेम ओपिनियन रादर देन क्वेश्चनिंग इट। यू शुड क्वेश्चन इट, नो, and not just be adamant about your own opinion, but internet will make you like that only। तो ये भी नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो दो नेगेटिव एस्पेक्ट के बीच में अननेसेसरी ये बोलना कि वो तो ब्लेसिंग भी है वो तो कर्स भी है, उससे बेटर है कि पूरा नेगेटिव खत्म करके हम एक बार में एंड में बोल दे कि इंटरनेट के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट है, क्योंकि फिर पूरा पैरा की वो कंक्लूजन की तरह बेटर बिहेव करेगा, बिकॉज पैरा की स्टार्टिंग में ब्लेसिंग थी और फिर पैरा के एंड में कर्स थी और फिर एंड में हम ये लाइन बोल रहे हैं। सो दैट इज वाई ऑप्शन फोर्थ विल बी a better option for placing this sentence than third one, because third को unnecessary हमें इन दो के बीच में डिवाइड नहीं करना चाहिए। उससे पहले भी नेगेटिव एस्पेक्ट चल रहा है, उसके बाद भी नेगेटिव एस्पेक्ट चल रहा है, वो फ्लो अननेसेसरी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एंड में फोर्थ जो ओवरऑल एक समरी की तरह कंक्लूजन की तरह बिहेव कर रहा है, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। सो आंसर इज फोर्थ। All right, so now your entire para is in flow. It has to be coherent, just like para jumbles. सब कुछ coherent होना चाहिए। देखो para में बिल्कुल coherence है कि पहले access नहीं था तो अब access मिल गया है, but yet अभी भी कह नहीं सकते कि knowledge increase हुई या नहीं हुई। फिर हम बोल रहे हैं again कि positive aspect only कि अब तो और भी access मिल गया knowledge का जो पहले unimaginable था। Again we are talking about access। फिर हम कह रहे हैं but इट इज लीडिंग टू सर्टेन इश्यूज। पहला इश्यू बताया कि सीरियस स्टडी नहीं होती है, अब दे डू नॉट रीड एनीथिंग। फिर सेकंड एस्पेक्ट कि अपने ही ओपिनियन को आप री इन्फोर्स करते हो, क्वेश्चन ही नहीं करते बिलीव्स को, जो चीज सोची हुई उसी को सही मान के एडमेंट रहते हो। फिर हमने एंड में बोल दिया ठीक है इंटरनेट की तो ब्लेसिंग भी है और कर्स भी है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने ब्लेसिंग बता दी, एंड में हमने कर्स बता दिया, तो एक कंक्लूजन की तरह ये बिहेव कर रहा है। सो एवरीथिंग इज इन अ फ्लो। So I hope you would have understood this question well. So now let's try this question as well. You should try this yourself and we'll discuss it later. Thanks a lot for watching.